Hello everyone. So today we want to discuss again these previous year topic wise questions. So today our topic is ratio and proportion. We're going to discuss 17 to 21 like your last 5 year questions that we want to discuss from ratio and proportion topic. So before we start, let's see the trends, how many question has been asked in 17, 18, 19, 21 in each slot. So as like in 2017 there was 2 questions in the slot 1 and 1 question slot 2, so total 3 questions. Similarly here also same thing. In 19 also 3 questions 1 and 2. In 2020 that's like 26 questions were asked here, and here 34 questions as you guys already know, and 22 questions in 2021, and it's also expected in 2022 there will be 22 questions in this particular section with 40 minutes. So this 1 question and 1 question here, 0 question here. In 2021 2 questions in the slot 1, 1 question in the slot 2 and 2 questions in the slot 3. Total 5 questions has been asked in the CAT 2021. So these are the trends. So like looking at these trends, one thing we can definitely say that you can expect minimum 1 question and maximum 2 questions will be there from ratio and proportion. Again, this is also a simple topic as compared to other. And one more thing, like in ये question जो select करने में, like what I have gone through, I have make sure that these questions are purely from this topic. Like इसमें सिर्फ ratio proportion का ही concept हो, ऐसा नहीं कि लाइक उसमें TSD का पार्ट हो, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, एज आई हैव बीन टोल्ड, जैसा मैं तुम्हें पहले बताया, ये बेसिक फॉर्म करते हैं तुम्हारे अर्थमेटिक का. तो अर्थमेटिक का तुम्हारा प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो, तुम्हारा SICA का क्वेश्चन हो, TSD का क्वेश्चन हो, उनमें परसेंटेज, एवरेज, ये सब कॉन्सेप्ट यूज होते हैं. बट ये जो क्वेश्चन मैंने रेशियो प्रोपोर्शन के लिए हैं, दीज क्वेश्चंस हैव लाइक इसमें पूरा जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ रेशियो प्रोपोर्शन का है, देयर इज नो एल्स. इवन मैंने जो मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन वो भी सेपरेट कर दिए हैं. सो दीज क्वेश्चंस आर प्योरली फ्रॉम रेशियो एंड प्रोपोर्शन. फाइन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. One more thing before I start, like this question I am solving here. Suppose I do some calculation mistake or any mistake, you just let me know in the comment section so that I can pin that comment, है ना. उस comment को मैं pin कर दूंगा और बाकी किसी को problem ना हो. Fine. And also if you have any question, anything, you can just let me know in the comment section. So let's get started. This is the first question, CAT 2017 slot 1. Suppose C1, C2, C3, C4 and C5 are 5 companies. These are the 5 companies. The profit made by these companies C1, C2, C3 are in the ratio 9, 10, 8. So 1, 2, 3, 4, how many companies? 5 companies are there. 5 कंपनियां हैं. And 1, 2, 3 का जो प्रॉफिट रेशियो है वो ये है. While the profit made by C2, C4, 5, C2 और 4, 5 का जो प्रॉफिट रेशियो है वो ये है, C2 और C4, C5 का. फाइन. सो हम मिक्स कर लेंगे इस रेशियो को. यू नो हाउ टू डू डैट. सो 5 से मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर दें एंड इसको कर दें 9 से, 90 मैं दोनों को बना रहा हूँ, इसको 9 से कर दें. सो दिस विल गेट द कॉमन रेशियो ऑफ 1, 2, 3, 4, 5. सो 81, 90 एंड 19, 5 से. Okay, this is for 4 ना, C2, C4, C2, C4, this is for C2. ठीक है. So 19, 5 is 95 and 100. So this is the ratio of C1, C2, C3, 4, 5's profit. C5 का जो profit है 19 crore more than C1. C5 has 19 crore profit more than C1. Then the total profit made by all 4 companies. So let's say 100x, ये XX है ना. सो लेट्स से C5 का जो प्रॉफिट है वो 100x है, C1 का 81x है. इनका डिफरेंस दैट इज 19x एंड दिस इज इक्वल टू 19 करोड़. सो दिस बिकम इजियर फॉर अस. सो x का वैल्यू 1 हो गया. सो दीज आर द एक्चुअल प्रॉफिट्स. लाइक x की वैल्यू 1 है तो 81 करोड़ प्रॉफिट C1 का है. नाउ इट इज आस्किंग अबाउट द टोटल प्रॉफिट मेड बाय द 5 कंपनीज. सो लेट्स ऐड ऑल दीज नंबर्स. सो लेट्स ऐड ऑल दीज नंबर्स. सो 100 and 81, 90, 95. So this is the then the total profit. Okay, so this is 6 and okay, one company miss. This is 72. This is 72 है ना, one company mix. तो 72 will be there. That I was checking that 6 आ रहा है और यहाँ पर 6 कोई भी नहीं है. Okay, so 8 and 15 and 15 and 18, 33 and 3, 438. So this is the answer. So second question, again slot 117. A stall sells popcorn and chips. A stall sells 2 things, popcorn and chips.
पैकेट हैं तुम्हारे 3 साइज के, लार्ज, सुपर एंड जम्बो. These are the 3. So popcorn and chips. The number of large, super and jumbo packets in its stock. So for popcorn के लिए जो तुम्हारा है ये रेशियो है, एंड फॉर चिप्स ये रेशियो है. ऑर्डर से ये लार्ज, सुपर, जम्बो 5, 6, 15 and 14. Now if the total number of popcorns packet in its stock it's same, so popcorn के जो पैकेट हैं, चिप के पैकेट जो है, अच्छा ये दोनों के पैकेट बराबर हैं. जो पॉपकॉर्न के टोटल पैकेट हैं और जो चिप के पैकेट हैं दोनों इक्वल हैं. ओके, तो इसका सम करते हैं, कितना आ रहा है? 3340 है ना, 3340. इसका सम कितना आ रहा है? 2935. अब बोल रहा है कि दीज टू आर सेम, ये दोनों सेम है. तो 7585 एलसीएम ले लेते हैं और वो नंबर बना देते हैं. तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहाँ पर 7 से और यहाँ पर 8 से, बिकॉज कर लोगे ना जल्दी से. 8 और 5 दोनों का मैंने एलसीएम ले रखा है, उससे हो गया. सो दिस इज 280, दिस इज ऑल्सो 280. सो लाइक आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद 7, आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस विद 8. 7, 7, 8 and 8. What we need? The number of jumbo popcorn packets and jumbo chip. जम्बो पॉपकॉर्न एंड जम्बो चिप, इनका रेशियो चाहिए 16 इंटू 7 अपॉन 14 इंटू 8. सो 7 to 8 to 2 to 1:1 is the answer. Fine. This was, I do like this was also simple. Both the questions were simple, easy one. Let's see the next one. So if A, B, C are 3 positive integers such that AB in the ratio 3:4 and BC in the ratio 2:1, so we'll mix these ratios and we'll get ABC. That will be, so multiply with this 2. This is 2, 3, 4, 2. Now which one of the following the positive possible value of A plus B plus C? So A plus B plus C, let's say x, and that is 9x. So possible value इनमें से कौन सी हो सकती है? So value will be multiple of 9, है ना. So ये 3 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल नहीं है. This is not 9 multiple. This is the multiple of 9, and this is also not 9. So this is the answer. So let's see this one. CAT 2018 slot 1. Two types of tea, A and B, are mixed and then sold at 40 per kg. The profit is 10% if A and B are mixed in the ratio 3:2 and 5% if in this ratio. So like there are two type of tea, A and B. उनका let's say price A और B है, and उनको फिर किसी रेशियो में मिक्स किया जाता है. let's say पहला कौन सा रेशियो है? 3:2 में. एंड देन सेल किया जाता है 40 पे. प्रॉफिट है कितने का? 10% का. अगर 40 पे सेल करने पर प्रॉफिट है 10% का, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? इतना आएगा. फिर इनको 2:3 में किया जाता है और प्रॉफिट कितना है? 5% का. और प्राइस अभी भी सेम है ना, प्राइस अभी भी सेम है. सो इट इज 40 अपॉन 1.05. तो इस रेशियो में अगर मिक्स करोगे तो इसका प्राइस कैसे निकलेगा? 3:2 के रेशियो में, तो इसका प्राइस आ जाएगा दिस वन. इसका प्राइस क्या हो जाएगा? दिस वन, एवरेज प्राइस. एंड दिस प्राइस इज इक्वल टू दिस वन. अब बेसिकली हमें मिले, पूछा क्या है? रेशियो पूछा है ना, ए और बी का रेशियो. सो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, सो लेट्स डिवाइड दिस थिंग. सो दिस इज 3a plus 2b and 2a plus 3b equals to 1.1, 1.05. So let's say ये कर देते हैं सर. So 21.5 and 22, ठीक है. So this is कितना हो जाएगा? 66a plus 44b, 42a, 63b. दिस इज इक्वल टू, ए को इधर कर दे अगर 42, सो दिस इज 24. ए इज टू बी निकालना है ना, एंड दिस इज, इसको इधर कर दो 44. सो आई थिंक 9, 13 4 9, 13 4 9 एंड 5 4 1 19b. So it is asking about A is to B. So A is to B.
19:24. This is the answer. Raju and Lalita originally had marbles in the ratio Raju and Lalita R and L. They have like marbles in this ratio. Lalita gave some of her marbles to Raju. So like let's take n marbles राजू को मिलते हैं, ललिता ने दी, ठीक है। ललिता के nx से n मार्बल्स जो थे वो राजू को ट्रांसफर हो गए, ठीक है। एज अ रिजल्ट राजू और ललिता का जो रेशियो था वो 5:6 हो गया। तो ये जो रेशियो था 5:6 हो गया। सो n और x में रिलेशन मिल जाएगा, है ना। तो सॉल्व करते हैं। 24x + 6n = 45x - 5n। अच्छा, n और x सेम तो नहीं लग रहे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 21x ना, 24 5 11। सो n/x = 21/11। ये आ गया। नाउ व्हाट इज आस्किंग, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स वाज गिवन बाय ललिता टू राजू। तो ललिता के ओरिजिनल nx थे, है ना, 4x और nx था इनका, फिर इसने n इसको ट्रांसफर कर दिए थे, और ट्रांसफर कितने किए, n। तो ये हमें निकालना है ना। फ्रैक्शन ऑफ आवर ओरिजिनल नंबर ऑफ मार्बल्स वाज गिवन बाय ललिता टू राजू, ठीक है। तो n/x की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, 21/11, दिस इज 9। सो 7 3 3 3, so 7/33 is your answer. Okay. The score of Amal Bimal in an examination are in the ratio 11:14. After an appeal, their score increases by the same amount and their new scores are in the ratio. The ratio of Bimal's new score to that of original score each. Again, this is also similar type of question, no? है ना। तो ये 18 स्लॉट 1 का है और ये 18 स्लॉट 2 का है। तो लाइक दोनों स्लॉट को बैलेंस टाइप का किया गया, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। जस्ट देखो लैंग्वेज चेंज है, एवरीथिंग इज सेम। तो लाइक ए और बी का रेशियो जो है 11x और 14x है। अब क्या किया गया, इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट, सो सेम अमाउंट से इंक्रीज कर दिया गया। उसमें एक डिक्रीज और एक इंक्रीज था, देन इनका रेशियो ये हो गया। रेशियो ऑफ, क्वेश्चन भी सेम पूछा है, रेशियो ऑफ बिमल्स न्यू स्कोर टू इज ओरिजिनल स्कोर के। तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ा ज़्यादा है, लास्ट वाले में कैलकुलेशन नहीं था ना, है ना। इसमें तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, इसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट लग रहा है। 56 × 11 कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। प्रॉब्लम मेरे लिए सिर्फ ये आएगा, बाकी तो मैं कर लूँगा, ठीक है। एनीवे, एंड कैन वी लाइक फिगर आउट समथिंग। 11x 14 में 47 तो लाइक अगर 14 4 करूँ तो 56 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। 14 3 करूँ तो 42 होगा, 3 करूँ तो 33 होगा, 33 एंड 42। और इसमें कितना ऐड करूँ, 47 होगा, 4 14। अच्छा, इसमें भी 14 ऐड करूँ तो n = 14। सो आई थिंक दिस इज फाइन, दिस इज राइट, दिस इज द राइट। सो दिस थिंग, ये देखो, अब ये बाई चांस पता चल गया, नहीं पता चलता तो ऐसे नहीं इसी पे हिट एंड ट्रायल में टाइम वेस्ट कर रहे हो। एग्जाम में यू कैन ट्राई दिस थिंग, लाइक मे बी एग्जाम में शायद मैं ये ना करता, अगर करता भी तो बहुत ही लाइक 10-20 सेकंड के लिए ट्राई करता, अगर गेस होता तो ठीक है, नहीं तो मैं प्रॉपर मेथड से सॉल्व करता, ठीक है। फाइन। तो ये मत सोचना कि ये कोई मेथड है, अब जैसे तुम्हें कोई आके ये शॉर्टकट दिखा दे कि देखो ऐसे सॉल्व होता, दिस इज नॉट अ मेथड, दिस जस्ट अ हिट एंड ट्रायल, और इस क्वेश्चन में बैठ जा रहा है, ठीक है। नहीं तो प्रॉपर मेथड यही है, इसको x और n में रिलेशन निकाल के सॉल्व करना, जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया है। फाइन। लास्ट वाले क्वेश्चन में कैन वी गेस 1 3, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो इट्स नॉट इजी टू फिगर आउट। अब यहाँ पर ये बाई चांस नंबर दोनों मुझे दिख गए किसी तरह, फाइन। तो बट इट्स नॉट लाइक कि ऐसे सॉल्व करोगे एग्जाम में लाइक यू विल बी डूइंग द प्रॉपर अप्रोच। हार्डली लाइक 4-5 मैक्स टू मैक्स 10-20 सेकंड यू कैन गिव कि देख लो, अगर हिट एंड ट्रायल से हो रहा तो ठीक है, नहीं तो प्रॉपर मेथड से सॉल्व करो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है।
ऑप्शन के चक्कर में कि ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है चलो, क्या पूछ रहा है? बिमल्स न्यू स्कोर, अब तुम लोग सॉल्व कर लोगे ऐसे करके, हमें ये मिल गया नहीं है। ठीक है, बिमल्स न्यू स्कोर टू डेट ऑफ ओरिजिनल स्कोरेज। बिमल्स न्यू स्कोर, बिमल का न्यू स्कोर कितना है? बिमल ये है ना, टू डेट ओरिजिनल स्कोर कितना था? 42, 14 3, एक्स की वैल्यू 3 आ रही ना, सो 14 4 जब 14 3 जब 4:3 होता है आंसर। ओके, अमला बीना गौरी इन्वेस्टेड सम मनी, अमला बीना गौरी इन्वेस्टेड सम मनी इन फिक्स डिपॉजिट हैविंग रिस्पेक्ट टू एनुअल इंटरेस्ट। तो इसका इंटरेस्ट इतना है, तो रिटर्न कितना बनेगा? जैसे लाइक रिटर्न कैसे डिसाइड होता है? अगर कोई तुम अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो उसका रिटर्न कैसे डिसाइड होता है? कि लाइक कितना तुम्हारा अमाउंट है, जैसे 3, फिर कितना लाइक अमाउंट, इंटरेस्ट एंड कितना टाइम, ये 3 चीज़ें होती हैं। इन 3 चीज़ों से डिसाइड होता है कि तुम्हें रिटर्न कितना मिलेगा। ठीक है, तो टाइम दिया है 1 ईयर, और ये अमाउंट है, ये लाइक इन्वेस्टमेंट है, तो इन्हीं के मल्टीपल के रेशियो में होगा जो भी रिटर्न होगा। सो दिस इज, एंड इफ बीना's इंटरेस्ट इनकम एक्सीड अमलास, बीना का अमला से डिफरेंस कितना है? 250। एंड व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट इनकम? तो अगर ये 2x इतना है, टोटल इनकम कितना है? 40, 58, 58x है। अगर 2x इतना है तो 58x कितना होगा? 29 से मल्टीप्लाई कर दें, 29 into 250, so this will be your answer. So 29 into 25 कितना होगा? 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, and 18 10 28, 28 4 32, and this was 0. So this is the answer. Let's see this one. In an examination, Rama's score was 1/12 of the sum of the scores of Mohan and Anjali. Rama's score was मोहन अंजलि, ये 3 लोग हैं। तो रामा का जो स्कोर है 1/12 है, तो अगर रामा का स्कोर 1 है तो इन दोनों का 12 है। ठीक है, आफ्टर रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज बाय 6। अब इन सबका स्कोर 6 से इंक्रीज कर दिया, तो लाइक इसका हो जाएगा x+6, इसका हो जाएगा 12+12, 12x+12। द रिवाइज्ड स्कोर्स ऑफ अंजलि, मोहन, रामा आर गिवन इन द रेशियो। ओके, so this x और y में रिलेशन निकलेगा। अगर मैं इसको y ले लूँ और इसको करूँ, ठीक है, बट वन थिंग, वेन एवर यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें देखो एक चीज़ यूज़ करेंगे, इसको जरूर याद रखना, ध्यान में रखना, इसमें रिवर्स प्रोसेस करेंगे। वेन एवर यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि स्टार्टिंग में देखो रेशियो नहीं दिया हुआ है, स्टार्टिंग में क्लियर रेशियो नहीं दिया है, स्टार्टिंग में राम, मोहन, अंजलि इनका रेशियो दिया हुआ है, बट एंड पर रेशियो एग्जैक्ट दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम पीछे से स्टार्ट करेंगे, विल सॉल्व बैकवर्ड। अब देखो कैसे करेंगे इसको, तो ये थोड़ा माइंड में रखना, इसको नोट कर लेना इस अप्रोच को। ठीक है, अब देखो अंजलि, मोहन, रामा दिया हुआ है, इनका रेशियो है 11x, 10x, 3x। ये कब है? आफ्टर रिवीजन। रिव्यू में क्या हुआ है? 6 मार्क्स स्कोर किए, तो इनिशियल इनका कितना रहा होगा? इनिशियल इनका इतना रहा होगा। इज इट आर नॉट? ये आफ्टर रिव्यू है और ये बिफोर रिव्यू है। ठीक है, तो लाइक क्वेश्चन वैसे भी सॉल्व हो जाएगा जैसे मैं सॉल्व कर रहा था, बट ऐसे आसान रहेगा, दिस वे इट विल बी इजियर टू सॉल्व। ठीक है, तो जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिले कि लाइक रेशियो एंड पर दिया हुआ है, स्टार्टिंग में क्लियरली रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो सॉल्व बैकवर्ड। ठीक है, तो 11x। अब क्या बोल रहे हैं? अब बैकवर्ड क्या था कि रामा का जो स्कोर है वो 1/12 है इन दोनों के सम का, तो वो कर देते हैं 3x - 6 इक्वल टू इन दोनों का सम 21 x - 12 बाई 12 है, तो लाइक 36 72 21x - 12, and that is 15x 72 60 x इक्वल्स टू 4। सॉल्व हो गया है ना। निकालना क्या? अंजलि स्कोर एक्सीडेड रामास स्कोर बाय, अंजलि का स्कोर
तो ये लाइक 44 है। और ये अच्छा कौन सा स्कोर पूछ रहा है, पहले वाला या बाद वाला? ओह, वन थिंग, लाइक दोनों ही सेम होंगे ना, लाइक पहले वाला हो या बाद वाला, है ना, क्योंकि दोनों के 6 से इंक्रीज कर रहे हैं, दोनों में 6, तो डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, है ना। तो इट डजेंट मैटर कि वो पहले वाला पूछ रहा है या बाद वाला पूछ रहा है, रिव्यू के पहले रिव्यू के बाद दोनों स्कोर डिफरेंस सेम रहेगा, स्कोर डिफरेंट रहेंगे बट उनका डिफरेंट तो सेम ही रहेगा, ठीक है। सो दिस इज 12, तो कितने का डिफरेंस है? 44 12, दैट इज 32 इज द आंसर। द सैलरीज ऑफ रमेश गणेश एंड राजेश, Ramesh, Ganesh, Rajesh are in ratio in 2010 and in the ratio 2015. 15 में 3 4 5। रमेश सैलरी, अच्छा ये है तुम्हारा रमेश, ये है तुम्हारा राजेश। रमेश सैलरी इंक्रीज बाय 25%, ओके, लेट्स से दिस, है ना। और रमेश की सैलरी अगर इसको इंक्रीज करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 25% से अगर इंक्रीज करोगे इसका 25%, 1/4 दैट इज 1.5, दैट इज 7.5, 7.5 हो जाएगी, है ना। यहाँ पर 2015 में इसकी सैलरी 7.5x होनी चाहिए, 7.5x होनी चाहिए, या फिर लाइक x रहने ऐसे ही ले लेते हैं, है ना, ऐसे ही कर लेते हैं। तो इसकी होनी चाहिए 7.5, तो 7.5 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 को वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 विथ 2.5। अगर मैं 3 को 2.5 से कर दूं तो 7.5, अगर ये रेशियो में तो सारे मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 10 और 12.5 है ना, 2.5 सही कर रहा हूँ मैं, 2.5 ठीक है। देन राजेश सैलरी ड्यूरिंग दिस पीरियड, राजेश की सैलरी कितनी इंक्रीज कर गई? तो राजेश की सैलरी 7 से 12.5 हो गई, 7 से 12.5, तो 5.5 का इंक्रीज है, तो 50% से ज़्यादा है। क्या गलती हुई? 657, ओ 343, दिस इज 343, दिस इज 343, मैंने 345 कर दिया। सो 343 तो लाइक किससे 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा ना 7.5। तो 7.5 कितने का इंक्रीज है? अननेसेसरी मिस्टेक, कितने का इंक्रीज है? 0.5 का 7 पर, तो लाइक 100 से करो तो 550/7 कितना परसेंट आ जाएगा? परसेंटेज निकालें ना तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49, 7 point something 1, so closest, this is the answer. A solution of volume 40 liters has dye and water in the proportion, एक सॉल्यूशन है। अच्छा देखो ये मिक्सचर के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये है मिक्सचर जैसे थोड़े, बट लाइक दीज आर नॉट द मिक्सचर। मिक्सचर के क्वेश्चन होंगे जिसमें रिप्लेसमेंट वगैरह वहां पर मैंने रखे हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है सिर्फ रेशियो जैसे ही, तो मैंने ये ले लिए इसमें, ठीक है। सॉल्यूशन है तो 40 लीटर का, डाई और वाटर है उसमें, डाई एंड वाटर 2:3 के रेशियो में है, और 40 है, 5 8 8 2 16, 8 3 24, ये एग्जैक्ट इनका वॉल्यूम होगा। वाटर इज एडेड टू सॉल्यूशन टू चेंज टू 2:5। अब इसमें वाटर ऐड किया जा रहा है, वाटर ऐड करके तो डाई तो इतना ही रहेगा, वाटर ऐड करके 2:5 हो रहा है, 2:5, तो ये 8 से हो रहा है, तो 8 से तो कितना वाटर ऐड हुआ होगा? 16 लीटर, है ना। ये रेशियो पता है और एक वैल्यू पता है तो सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट क्या बता रहा है? इफ 1/4 ऑफ दिस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, तो ये डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है, इसका 1/4 हटा दिया गया, टेकन आउट, तो बचेगा कितना? 75%, 75% 3/4 इसका, 3/4 इसका, तो 4 4 16, 4 3 12, 3/4 ना, 4 10 30, ये 30 आ गया, ये 30 आ गया। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड टू द रिमेनिंग सॉल्यूशन? अब इसमें डाई कितनी ऐड करनी चाहिए सो डैट ये 2:3 हो जाए? तो डाई ऐड करेंगे तो वाटर तो उतना ही रहेगा, और ये 2:3 करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से करोगे 20, तो कितना ऐड किया पूछ रहा है? हाउ मैनी लीटर्स ऑफ डाई मस्ट बी एडेड, कितना डाई ऐड करना चाहिए? 8 लीटर इज द आंसर, ओके।
सो ये टाइप इन द टाइप है, यू नीड टू टाइप इट इन द गिवन स्लॉट, गिवन स्पेस. A sum of money is split among A, S and M so that ratio of shades of A and S, Amal and Sunil, is 3:2. While the ratio of shade of Sunil and Mittal, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है. देखो ऐसे क्वेश्चन आई थिंक हम ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें सिर्फ रेशियो को मिक्स कराना है. इफ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो पहले इसको मिक्स कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दे, मिक्स हो जाएगा. 6, 4, 5. If the difference between the largest and smallest that is 2x equal to 400, then the Sunil share, Sunil का शेयर कितना है 4, तो 2x पता है, 4x कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. This also you need to type 800 in the given blank. Okay, so CAT 2021 slot 1, a basket of 2 apples, 4 oranges, 6 mangoes cost the same as a basket of 1 apple, 4 oranges, 8 mangoes, or basket of 8 and 7 mangoes. Then the number of mangoes in a basket of mangoes that has the same cost as other baskets each. Okay, so basket of 2 apples, number of mangoes in the basket. अच्छा, तो ये सबका कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट इक्वल टू कि लाइक एप्पल, ऑरेंजेस, मैंगोज, 2 एप्पल, 4 ऑरेंजेस और 6 मैंगोज का जो कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू 1 एप्पल, 4 ऑरेंजेस एंड 8 मैंगोज, एंड दैट इज इक्वल टू 0 एप्पल, 8 ऑरेंजेस एंड 7 मैंगोज. नाउ यू नीड टू फाइंड इक्वल टू जिसमें सिर्फ मैंगोज हों, तो कितने मैंगोज होंगे. ओके, सो हाउ मेनी मैंगोज विल बी देयर. दिस सीम्स टू अ गुड वन. ओके, तो एक तो इक्वेशन बना के कर ले, है ना. आई थिंक इक्वेशन बनाएंगे तो काफ़ी लाइक 3 इक्वेशन 3 अननोन आई थिंक, है ना. 3 इक्वेशन 3 अननोन कैन बी सॉल्व. 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व हो जाएगा. बट अगर वैसे हम देखें कि लाइक देखो, अब मे बी ऐसे सॉल्व हो जाए, मे बी ऐसे ना हो, ठीक है, रिस्क है यहाँ पर. बट इक्वेशन से तो सॉल्व हो जाएगा. आई होप एवरीवन लाइक समझ में आ रहा हो इक्वेशन कैसे बनाओगे. इक्वेशन देखो, लाइक 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल्स टू 4x प्लस 1x, 8x 4y प्लस 8z इक्वल्स टू, तो ये 3 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा. एक और चीज़ करके देख लेते हैं. अब देखो यहाँ पर एक एप्पल कम हो गया है, ऑरेंजेस में कोई चेंज है नहीं. एक एप्पल कम हो गया है और 2 मैंगोज बढ़ गए हैं, तो इसका मतलब, और कॉस्ट सेम रही है, प्राइस सेम रहा है, तो इसका मतलब है 1 एप्पल इक्वल टू 2 मैंगोज, 1 एप्पल इक्वल टू 2 मैंगोज. सो अब मैं क्या करूँ, यहाँ से एक एप्पल जो है तो 2 एप्पल 4 मैंगोज आ जाएंगे. तो इसकी जगह पे व्हाट आई कैन राइट कि लाइक 4 ऑरेंजेस, और अब यहाँ पर ये 2 एप्पल को मैं रिप्लेस कर दे रहा हूँ, एंड दिस इज नाउ बिकमिंग 6 प्लस 4 दैट इज 10 मैंगोज. यहाँ पर एक एप्पल है तो एक एप्पल की जगह 2 मैंगोज आ जाएंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, तो लाइक 8 प्लस 2 10 हो जाएंगे, और ये अगेन 4 है. ठीक है, नाउ अब इसको कंपेयर कर लेते हैं. 4 ऑरेंजेस कम हो गए हैं, 4 ऑरेंजेस कम हो गए हैं, नहीं 4 ऑरेंजेस बढ़ गए हैं, 4 ऑरेंजेस बढ़ गए हैं, 4 ऑरेंजेस का इंक्रीज है, देन 3 मैंगोज का डिक्रीज है. सो दैट इज 3 ऑरेंजेस इक्वल टू 4 ऑरेंजेस इक्वल टू 3 मैंगोज, 4 ऑरेंजेस इक्वल टू 3 मैंगोज. तो अब हमें निकालना क्या है कि सारे मैंगोज हों, तो ऑरेंज है यहाँ पर, इसको रिप्लेस कर देते हैं. तो 8 ऑरेंजेस हैं, 4 ऑरेंजेस 3 हैं, तो 8 कितने हो जाएंगे, 6 मैंगोज. सो 7 प्लस 6 मैंगोज, तो 13 मैंगोज विल बी योर आंसर. दिस इज द राइट. फाइन, गुड क्वेश्चन. लाइक बाकी इक्वेशन वगैरह से भी सॉल्व कर सकते हो. दिस इज द ऑल्सो द वे टू सॉल्व. बट
अब पता नहीं एग्जाम में ये अगर तुम ट्राई करोगे डिफिकल्ट हो सकता है। इक्वेशन से आई थिंक ऑप्टिमम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम इक्वेशन से सॉल्व करते हो। द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर अर्न इन अ डे इक्वल्स, अगेन ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है ना, ये सिर्फ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो का क्वेश्चन है। व्हाट सीता अलोन अर्न्स इन 6 days? सो नीता एंड गीता, सो लेट्स से नीता अर्न्स एन, गीता अर्न्स जी, और ये कितना अ डे जो सीता 6 days में, तो ये नीता की एक दिन की अर्निंग है, ये गीता की एक दिन की अर्निंग है, और ये सीता की एक दिन की अर्निंग है। द अमाउंट सीता एंड नीता earns in a day equal what Geeta alone earns in a 2 days. Fine. The ratio of daily earning of one who earns the most to the one who earns the least. Okay. तो अब देखो क्या करना है, क्या इसमें n plus g, इसमें क्या करो, एक इंटरेस्टिंग मेथड है इसको सॉल्व करने का। अगेन इसको लाइक अगर नहीं पता हो तो केयरफुली नोट डाउन कर लेना। 2:1। अब तीनों की अर्निंग तो कांस्टेंट रहेगी, है ना, तीनों की अगर अर्निंग सम करें तो कांस्टेंट रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ इसको, लाइक मैं इन दो रेशियो को मिक्स करूंगा, ये y है ना, डिफरेंट रेशियोज हैं, तो ये 6x 1x और ये 2y 1y। सो अब देखो n प्लस जी प्लस एस इक्वल्स टू 7x आ रहा है, यहाँ पर s प्लस n प्लस जी इक्वल टू 3y आ रहा है। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बोथ दिस शुड बी इक्वल, तीनों की अर्निंग के वन डे अर्निंग का सम इक्वल ही रहेगा। तो 7x 3y, x इज टू वाई 3:7 है, 3:7 है। तो x की जगह 3a रख दो, x की जगह 3 रख दो, y की जगह 7 रख दो, तब भी हो जाएगा। ठीक है, x की जगह 3 और y की जगह मैं 7 रख दूंगा, x की जगह 3 और y की जगह 7 रख दिया मैंने। तो कितना आ गया, 18/3, 14/7। देखो दोनों का सम 21 आ रहा है। ठीक है, s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, g की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब अगर g की वैल्यू 7 है और ऊपर 18 है तो n की वैल्यू 11 हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो वेरीफाई हो रहा है, n की वैल्यू 11 है, s की वैल्यू 3 है, 14 आ रहा है, इट्स मीन्स इट्स वेरीफाइड। तो s n और g की जो वैल्यूज आएंगी, s की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 11 है, g की 7 है। पूछ क्या रहा है, द रेशियो ऑफ डेली अर्निंग ऑफ वन हु अर्न्स द मोस्ट टू द हु अर्न द लीस्ट 11:3। ठीक है, ओके, लेट्स सी दिस वन। 2021 slot 2, A B C jointly invest in a business and agrees to share the overall profit in the proportion to their investments। तो जो लाइक नॉर्मल ही रूल होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी के रेशियो में प्रॉफिट शेयर होता है। अनिल शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट, अनिल का जो शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट वो 70% है, तो अनिल को जो प्रॉफिट मिलेगा वो भी 70% मिलेगा। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस फ्रॉम 420, उसका प्रॉफिट जो है 420 से डिक्रीज कर जाता है। ओवरऑल प्रॉफिट में कितना चेंज आता है, ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट होगा उस पे प्रॉफिट ना, ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पे प्रॉफिट। ओके, ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट होगा किसका, ए का, है ना, ए का जो ओवरऑल, ए का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ए का जो इन्वेस्टमेंट है ना, ए का जो इन्वेस्टमेंट है उसी पे परसेंटेज निकलेगा। तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है, लेट्स से ए ने एक्स इन्वेस्ट किया है, तो उसका कितना 3% डिक्रीज होगा, 3% डिक्रीज हो गया। तो 3%, डेट 3% इज इक्वल टू जो एक्स की इन्वेस्टमेंट है, एक्स की जो इन्वेस्टमेंट है उसका 3% जो है वो 420 के इक्वल है। ये समझ में आया, 18 से 15 ना, जो ए ने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसमें उस पर उसे प्रॉफिट मिलता, बट उस प्रॉफिट में 3% का डिक्रीज हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 420। सो तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया, 3%, अगर इतना है तो 100% कितना होगा
3 से 1400 हो जाएगा, 100 है 1000, 1000 14,000। तो जो ए ने इन्वेस्ट किया था वो था 14,000। तो अगर 70% इतना है तो बाकी बचा कितना होगा? 70% अगर 14,000 है तो 100% कितना होगा? 20,000 होगा। तो रिमेनिंग जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 6,000 का इन दोनों ने मिलके किया है, इन दोनों ने मिलके 6,000, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 का है। ओके। चिंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज बाय 80। अब जो चिंटू ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसमें प्रॉफिट उसका गोज अप 15% से 17% हो जाता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लाइक लैंग्वेज अगेन यहाँ पर क्लियर नहीं है कि जो इंक्रीज है ये लाइक उनके प्रॉफिट अमाउंट में है। जैसे जो अभी मैंने सॉल्व किया वो मैंने सॉल्व तो इसके बेसिस पे कर दिया कि लाइक उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था है ना, उसके परसेंटेज के हिसाब से कि लाइक सपोज 100 रुपीज उसने इन्वेस्ट किए थे तो उसमें से 18% का प्रॉफिट है और फिर उसे 15% का प्रॉफिट है। मैंने ऐसे सॉल्व किया। बट आई थिंक थोड़ा क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि किस पर है। मे बी लाइक सपोज उसे ये इन्वेस्टमेंट में मैंने किया, उसका 100 रुपीज का प्रॉफिट था है ना, 100 रुपीज का प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट में 18 से 15 का चेंज है। ओके, लीव इट। मे बी मैं फालतू में कंफ्यूज हो रहा हूँ बट मुझे थोड़ा सा इसमें वो लगा। ठीक है, एनीवे चलो ऐसे देखते हैं। आई थिंक ऐसे कर रहे हैं आ जाएगा ऐसा आंसर, देखते हैं। तो ये आ गया 20,000। वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जैसे मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि लाइक ये कंफ्यूजन हो सकता है कि लाइक उस ये जो 18% 15% उसके प्रॉफिट का दिया हो, ठीक है। बट एनीवे लीव इट, जो कर रहे थे उस पर करते हैं। प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 80 द ओवरऑल प्रॉफिट। तो इसका जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है, ओवरऑल प्रॉफिट है वो 15 से 17% का चेंज आता है। तो लाइक 2% का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू 80। तो 50 से कर दें, 50 से करोगे तो ये 4,000 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा? चिंटू का इन्वेस्टमेंट आ गया ये 4,000 और इसका 2,000 हो जाएगा। क्वेश्चन इज आस्किंग बॉबी का इन्वेस्टमेंट, बॉबी का इन्वेस्टमेंट 2,000। फाइन। One part of hostel's monthly expenses is fixed and other part is proportional to the number of its boarders. Okay, again this is the question जो तुम तक्षशिला की बुक में देखोगे या कि दिया हुआ है, कोई भी तुमने बुक सॉल्व की हो, इवन ये कैट में आई थिंक 2 बार पहले आ चुका है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड अर्लियर 2 टाइम्स, से तीसरी बार ये क्वेश्चन आया होगा। सेम फॉर्मेट क्वेश्चन है, पार्सली फिक्स पार्सली वेरिंग। 2 बार तो आई थिंक बॉर्डर करके आया है और एक बार आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी करके भी आया होगा। तो 2-3 बार क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए। एंड आई हैव शोन हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो ये भी मैंने तुम्हें मेथड बताया है। ओके, सो लेट्स सी। द हॉस्टल कलेक्ट्स 1600 पर मंथ फ्रॉम ईच बॉर्डर व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर। सो नंबर, तो इसमें क्या मैंने बताया था तुम्हें, लाइक इसको ऐसे सॉल्व करते ना, 50 बॉर्डर्स है, नंबर ऑफ बॉर्डर्स इधर लिखो, नंबर ऑफ पर्सन, टोटल एक्सपेंसेस इधर लिखो। टोटल एक्सपेंसेस कितना आएगा? 1600 पर मंथ। अच्छा, ये 1600 कलेक्ट करता है, इट्स नॉट एक्सपेंस। द प्रॉफिट ऑफ द हॉस्टल इज 200। प्रॉफिट 200 है तो एक्सपेंस कितना हुआ? 1400। तो 1400 इंटू 50, 1400 इंटू 50, 14 5 70, 70,000, ये टोटल एक्सपेंस है। नाउ व्हेन द बॉर्डर 75 हो जाते हैं, बॉर्डर्स 75 हो जाते हैं, द प्रॉफिट ऑफ हॉस्टल इज 250 पर ऑर्डर, पर बॉर्डर। तो प्रॉफिट 1600 पे 250 होता है, तो एक्सपेंस अब कितना है? 1350। 1350 इंटू 75, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। इसका कुछ कर सकते हैं? नहीं, मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। चलो देन नेक्स्ट देखते हैं, अभी इसको करते हैं। तो व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर्स इज 80, जब ये 80 है देन हॉस्टल का प्रॉफिट बताना है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, सेम ऐसा, लाइक आई एम टेलिंग दिस क्वेश्चन हैज कम थ्राइस। और अगर पार्सली फिक्स पार्सली वेरिंग देखोगे तो बहुत बार आ चुका होगा, 7-8 बार, ठीक है। तो द रिपीटेटिव क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना आना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को भी तुम एग्जाम में 4-5 मिनट में सॉल्व कर रहे हो या फिर छोड़ के आ रहे हो देन लाइक है ना, तो कैसे चलेगा काम, क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है।
ये तो करने चाहिए और जल्दी सॉल्व करने चाहिए एग्जाम में। एंड ऑल्सो मेक श्योर कि जल्दी जल्दी में कि लाइक गलत भी मत कर दो, है ना। गिव प्रॉपर जितना टाइम उसे चाहिए, डिसेंट टाइम, 1-2 मिनट, मैक्स टू मैक्स 2 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देना। अब ऐसा भी नहीं कि बहुत जल्दी में गलत करके, ठीक है। ओके, तो 135, 75, तो 5, 5, 25, 13, 5 65 to 67, 35, 94। आई होप लाइक एग्जाम में डेफिनेटली आई विल यूज कैलकुलेटर फॉर दिस थिंग। अब तुम लोग का मुझे नहीं पता बाकी, बट आई विल डेफिनेटली यूज कैलकुलेटर। ये था ना 1250। आई होप ये सही है। 512, चलो मैं चेक कर लेता हूँ, अगर नहीं आएगा आंसर आई विल यूज कैलकुलेटर। ओके, अभी मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसे। 10, तो कितने का इंक्रीज है यही देखते थे ना, इंक्रीज कितने का है। तो लाइक 11250, 70,052, 13125, सो 3125 ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो अब ऐसे कर लो, है ना, ऐसे कर लो। 25 पे इतना इंक्रीज है, तो 5 पे कितना इंक्रीज होगा, 5 पे कितना या फिर ऐसे यहाँ से अगर देख लो तो चाहो वो भी देख सकते हैं कि 25 पे इतना है तो 3 पे, आई थिंक 30 पे कितना होगा, आई थिंक 5 से आसान है। तो इसे 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे इंक्रीज है 5, 6, 5, 2, 5, 5, इतने का इंक्रीज आएगा। सही है, 5, 6, 5, 2, 5, ठीक। तो ये इसमें ऐड कर देते हैं, 5, 2, 6, 0, 5, 4, 7। आई होप कैलकुलेशन सही है, ऐड कर रहे हैं ना तो 10 आएगा। 10, दिस इज 5। अगर आंसर मैच नहीं किया देन आई विल यूज कैलकुलेटर। अगर मैच आंसर गलत कर गया तो लाइक लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो अब इसका एक्सपेंसेस, है ना। अब वो देखो ये एक्सपेंस आ गया, इतना हॉस्टल वाले का खर्च हो रहा है, और वो बच्चों से कितना ले रहा है, 1600 इंटू, तो दिस इज, ये तो आसान, 128 है ना। तो लेट सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू, 1,28,000, 107,500, सो दिस विल बी द प्रॉफिट, जो इसका डिफरेंस आएगा 5, 0 and 2, 20, दिस इज द आंसर। फाइन, सो दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है, दैट्स वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो मेक श्योर यू लर्न हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर नहीं आता तो देख लेना, लाइक मे बी आई हैव मेड सम वीडियो, तो अगर कुछ होगा तो आई विल पिन, मैं यहाँ पर उसको लाइक शेयर कर दूंगा, ठीक है, जिसको नहीं पता है कॉन्सेप्ट। ओके, so catch 2021 slot 3 question. A tea shop offers tea in cups of 3 different sizes. 3 different size. The product, अच्छा साइज वाला हमने अभी भी किया था कहीं पर, जो पॉपकॉर्न और चिप्स था, सेम टाइप का क्वेश्चन है क्या, पॉपकॉर्न एंड चिप्स वेयर, छोड़ कहीं तो था, लेट्स लीव इट। हाँ ये रहा, ये ना। इसमें क्या पूछ रहा था, ठीक है, ये तो सिंपल था, ये क्या है, okay, this is the last question. A tea shop, tea in cup of 3 different size, the product of the prices of 3 different size, okay। अच्छा ये डिफरेंट क्वेश्चन, XYZ 3 डिफरेंट, मल्टीप्लाई करके 800 आ रहा है। द प्राइजेज ऑफ द स्मॉलेस्ट, तो लाइक इसको मैं स्मॉलेस्ट ले लेता हूँ, तो SM, स्मॉल, मीडियम, स्मॉल मीडियम एंड, और क्या है, 3 डिफरेंट कप्स, स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है। तो SML, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट SML, इनका मल्टीप्लिकेशन 800 है। और
स्मॉलेस्ट और मीडियम का रेशियो है 2 और 5। तो लाइक स्मॉलेस्ट अगर 2x है तो मीडियम 5x हो जाएगा, है ना। तो दिस इज 10x स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू 800, that is x square L equal to 80. Fine. If the shop owner decides to keep the price of the smallest and medium one by increasing 6, अब ये smallest और medium को 6 से increase कर रहा है and largest को unchanged रख रहा है. So like this will be 2x plus 6, 5x plus 6, L equal to 800. तो हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो ये 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और क्या होगा, ये L कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 10x स्क्वायर. ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर चेंज है, 3200 हो जाएगा, तो ये 3200 40 आ जाएगा, है ना. तो 4 कर दो तो 40 आ जाएगा. तो 40x स्क्वायर इक्वल्स टू 10x स्क्वायर 30 and 12, 30 and 12 42 and 6 36. Okay, चलो इधर सॉल्व करते हैं इसको. सो दिस इक्वेशन 30x स्क्वायर माइनस 42x माइनस 36 इक्वल्स टू 0. 3 से कैंसिल हो जाएगा सब कुछ, है ना. ये माइनस 12 है, 6 से एक्चुअली कैंसिल हो रहा था. चलो कोई नहीं, 4 3 से करेंगे ना, नहीं 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 से कैंसिल कर रहे हैं तो 6 आएगा. 5 6 है 30, 10 3 जा, तो ये क्या आएगा 5, ये ब्रेक होगा लाइक तुम्हारा 10 और 3 में, 10 और 3 में, तो 5x माइनस 2 और ये 3 में तुम्हारा ब्रेक होगा ना, तो प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. आई होप मैंने सही किया, थोड़ा सा मैंने इसमें रिस्क लिया है. 3x माइनस 6, हाँ ठीक है. तो x का वैल्यू निगेटिव तो होगा नहीं, है ना. x का वैल्यू कितना 2 आ जाएगा, दिस इज 2, x का वैल्यू 2 आ गया. द सम ऑफ द ओरिजिनल प्राइसेस ऑफ 3 डिफरेंट साइड्स. ओरिजिनल प्राइस तुम्हारे ये है, ओरिजिनल प्राइस ये है, तो ये ओरिजिनल प्राइस स्मॉल का कितना हो गया 4, इसका कितना हो गया 10 एंड 4 एंड 10, एल का कितना आ जाएगा 20, एल का 20. तो इन सबको ऐड कर दो, 4 10 20 that is 34. So इसका आंसर अगेन थीटा क्वेश्चन, so you need to type 34 in the given space. Okay, so these were the question from ratio and proportion. I hope like you have understood the concept. There were few questions that you need to, like this question definitely make sure you solve, and like I think 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें सिर्फ रेशियो मिक्सअप करना था, तो वो थोड़ा ध्यान रखना. रेशियो मिक्सअप मतलब जैसे लाइक ABC दिया हुआ है, ये 2:3 दिया हुआ है और ये 4:5, इसको मिक्स करना है. तो ये कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए और इसे जल्दी करना आना चाहिए, ठीक है. अच्छा, आज तुम ड्रिल एनालिसिस में तुम्हारे लिए दीज आर द फ्यू क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस हैं, ये तुम्हें एज अ होमवर्क सॉल्व करने हैं. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेक श्योर यू सॉल्व. अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आता है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा था ना, ये क्वेश्चन देखो, ये सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर 2002 में पहले आया है, ठीक है, और कैट 1999 में आया है और अभी आया है. और भी बार आया है, इलेक्ट्रिसिटी करके एक बार आया है आई थिंक, और एक बार ऐसे ही सेम वे में भी आया है. तो ये 2-3 बार क्वेश्चन आया है. तो मेक श्योर सॉल्व दीज क्वेश्चंस, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना.
You can let me know your answers in the comment section. और अगर तुम्हें इनमें डाउट आते हैं कोई, वी कैन डिस्कस इन एनी वे, लाइक इन द नेक्स्ट क्लास और समवेयर वी कैन डिस्कस, अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है. ओके, सो मेक श्योर यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस प्रॉपरली. एक बार और सॉल्व कर लेना, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन से. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and you can definitely expect one or two question, and these question gonna be easy one. Don't miss out on these questions. Okay, so make sure you guys join this Telegram channel. There I will update regarding everything, and you'll also get the link for these sessions. And you can like join this Facebook group also. There you can discuss your questions and all the things. So that's it for today. Let's see you in the next video.